Once again, a very good morning in Jai Hind class 11th. I hope the case studies discussed in the last lecture is clear to all of you. The case studies, all the three case studies are clear to all of you. So, this time we are continuing with the chapter. We are done with the sole proprietorship. Who is a sole proprietor? It is a person who carries on a business exclusively on his account and at his own risk. He bears all the risk alone and get all the profit because he is the sole owner of the business. Right? We are almost done with the features of sole proprietorship. Today we are going to discuss the merits of sole tradership. Right? See, a sole trader enjoys the few advantages, and what are those advantages? This is what we are going to discuss here. The very first one is quick decision making. Sole tradership facilitates quick decision making. How? Because he is the only person who is responsible for each and everything. A sole trader is there to control the business. He need not to consult anybody. उसे किसी से consult करने की ज़रूरत नहीं है because he is the owner of the business. So he need not to go to any person, right? If he want to take any decision, if he want to make some changes in the organization. Let's suppose there are two partners in an organization of a firm. ठीक है, there are two owners. उनकी partnership है. So one alone cannot take the decisions. He need to consult with the with his or her partner, right? Because वहाँ पर दो partners हैं, but यहाँ पर when he is the sole trader, so he can take decision by themselves. Second point, confidentiality or secrecy of information. See, he is the only sole trader. He knows what is going on in the business. And the important clues of the business can be kept as closely guarded secret by the proprietor only. Partners होते हैं, उनको सब पता होता है what is going on around, ठीक है. But there are many secrets, right? तो वो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था to converting black money into white money, right? There are many more things जो secrets होते हैं, जो information होती है. It remains only with the sole trader, right? Then comes direct incentive. Direct incentive, see, I'm telling you this again and again. When he's the only sole trader and he bear all the risk, then he's the only person who enjoy all the profit. Right? He enjoy all the profit, bear all the risk and losses of business. There is a direct relationship between the efforts and rewards. वो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना reward मिलेगा. उसको alone the trader we are talking about here, right? See, if he is working very hard, if he is making tremendous effort, then it will motivate the owner of the business to work hard to achieve the maximum efficiency and profitability. If the owner is finding that I am getting enough reward, I am getting a good profit, right? So this will motivate that particular owner, right, that he will work more hard to achieve the maximum efficiency and more profitability. Okay, but if, like, suppose you are into any kind of business, you have just started any kind of business, and what you are finding only losses, right? You are not enjoying any profit. Okay, so what will you do? Your morale will get down, right? So there must be something which motivates you, and profit or reward is that particular thing. If the profit you are getting, rewards you are getting, that means it motivates you to work more hard so that you can achieve the maximum efficiency and more profit. Next, sense of accomplishment. Sense of accomplishment. The sole trader offers an independent way of life for the people who have necessary skills, right? What is in this? Sense of accomplishment. उसे अपना motive complete कराना है, अपना काम पूरा करना है. उसके लिए the people who have necessary skills, he appoint that person, he asks them to do work independently as per their own wish, but he do not wish to work as wage earners.
right? If somebody is joining him for only earning profit, so he do not wish like this. He offers an independent way of life to the people जिनके पास skills हैं. आप अपने हिसाब से काम करो, मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, right? It provide an excellent opportunity of self employment to the person with small means and professional skills. जिनके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी हो जाती है उनके लिए, बिकॉज ही इज़ द ओनली सोल ट्रेडर एंड ही वुड लव टू वेलकम द सजेशंस, right? And if anybody is taking initiative, he would love to welcome it, right? Because what he want the profit. Then comes ease of formation and closure, because he is the only sole trader, he is only look after the whole business, so it is very easy for any of the person to form a business organization, a firm, and to close it. The establishment of a sole tradership concern is very easier as compared to partnership. अगर आप करोगे, आप 10 बातें करोगे, 10 चीज़ें दिमाग में आएंगी आपके, यू नीड अ लॉट टू थिंक, राइट? यू अलोन कैन नॉट मेक डिसीजंस, बट अ पर्सन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन स्टार्ट एनी बिजनेस. उसे कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी है. विथ स्मॉल बिजनेस दे कैन स्टार्ट एनी थिंग. प्रोक्योरमेंट ऑफ लाइसेंस में बी नेसेसरी टू डील इन पर्टिकुलर कॉमोडिटीज़. ये हो सकता है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, बट उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है इफ़ ही इज़ डीलिंग विद ड्रग्स, लिकर काइंड ऑफ, ठीक है? अदरवाइज़ कोई नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप खोल रहा है, कोई स्टोर खोल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की उसके लिए ज़रूरत नहीं है. उसके पास ही नीड टू अरेंज अ स्मॉल कैपिटल only, right? In the same manner, it is very easy to close down the business. There is no need to take any permission from any authority to close down the business. If you find any kind of problem, like I have told you, in case of death of the sole trader, bankruptcy या imprisonment, ये कोई कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हो जाती है, तो he can close down the business as well, right? Next comes flexibility. Flexibility is why? Because he is free to change the nature and scope of his business operation. Flexibility उसे कहते हैं, जैसे like this is the example of flexibility. You are now studying online. Earlier you used to study while sitting in the classroom. You have face-to-face interaction with your teacher, with your friends. But nowadays, when situation demands this, under COVID-19, so what we are all are doing, we are going online. So like the way a sole trader is absolutely free to change the nature and scope of his business, वो चाहे तो अगर if he is finding any situation demands change in the environment or anything else, he is free to change the nature and scope of business. And this flexibility is available because the sole trader is the only sole owner. अदरवाइज़ 2 लोग काम कर रहे हैं तो कहेंगे भाई मेरे को बिज़नेस बंद नहीं करना है, आई डू नॉट वांट टू शट डाउन द बिज़नेस, राइट? और उसे कंसल्ट भी करना पड़ेगा उसके साथ. तो अब वो चाहे तो वो ग्रॉसरी शॉप चला रहा है, लेकिन वो स्टोर रूम शूज़ का स्टोर खोलना चाहता है, तो वो ही कैन स्विच ऑन टू अनदर बिजनेस एज वेल. फ्लैक्सिबिलिटी होती है इसमें. ही नीड नॉट टू कंसल्ट विद एनीबडी. पर्सनल टच. Sole trader can maintain personal contact with his customers. He knows who are their customers. Direct contact would enable the proprietor to know the nature of his customer. उनकी taste, like और dislike, क्योंकि he is the only sole trader, तो उसे अपने customers के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है. Sense of personal touch with the customer would enhance the reputation of firm. The more he would be able to satisfy the customers, the more he would be able to get the profit. राइट? एज ही इज़ दी ओनली सोल ट्रेडर, तो उसे तो सब कुछ देखना ही होगा. उसे अपने कस्टमर्स की लाइक, डिसलाइक और टेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ कम्स द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप. अब देर आर फ्यू एडवांटेजेस, तो देर मस्ट बी सम लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडरशिप. व्हाट आर दोज? लिमिटेड रिसोर्सेज. यस, हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज? सी, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि एक सोल ट्रेडर अरेंज करता है वो लिमिटेड होता है.
दो लोग हैं, चार लोग हैं पार्टनरशिप में, इफ़ दे आर डूइंग सम वर्क, तो दे हैव सम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दे कैन अरेंज दी मनी, right? When they two or three or four are working all together, they are into a same business, तो वो अपनी अपनी कैपिटल लगाएंगे. बट यहाँ पर द सोल ट्रेडर कैन रेज द फंड्स, इट इज़ लिमिटेड. he can either depend on his personal resource, right? उसके पास जितना कैपिटल है या तो वो यूज़ करेगा या उसे बोरो करना होगा. बोरो वो मार्केट से कितना कर सकता है, उसकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द बोरोइंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन हिज एसेट्स एंड क्रेडिट वर्थीनेस. सी, आप अगर मार्केट में जाओ बेटा, आप किसी से बोरो करना चाहो 5 लाख रुपीज़, 6 लाख, 7 लाख रुपीज़, तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे, आपके पास क्या एसेट्स है, आपके कितने एसेट्स हैं, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, मतलब आप कितना बोरो कर सकते हो जो आप वापस कर सको. लेट्स सपोज किसी के पास कुछ है ही नहीं, घर नहीं है, कार नहीं है, कुछ नहीं है, एसेट नहीं है उसके पास कोई, और वो किसी से बोरो करता है, तो कौन देगा पैसे उसको, ठीक है. उसको देख के दिए जाते हैं किसी को भी पैसे कि उसकी वर्थ कितनी है. So this limitation of financial resource may put hurdle in the way of expansion of business. एक सोल ट्रेडर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अपने बिहाफ पे कर सकता है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो उस पैसे को फिर बिजनेस में लगाएगा, फिर पैसे को बिजनेस में लगाएगा, और थ्रू दिस वे ही कैन एक्सपेंड हिज बिजनेस. बट अ सोल ट्रेडर कैन नॉट रेज मोर फंड. ज़्यादा फंड वो रेज नहीं कर सकता है जितनी उसकी. अब देखो, सोल ट्रेडर है तो बहुत लंबा काम नहीं कर रहा है. लेट्स सपोज स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, एक स्मॉल कैपिटल के साथ उसने काम करना शुरू किया है, राइट. सो मतलब फिनेंशियल रिसोर्सेज में पुट हर्डल्स, जिससे एक्सपेंशन में रुकावट आ सकती है. लिमिटेड रिसोर्सेज में स्पेशली फिनेंशियल रिसोर्सेज, बिकॉज वही पैसा लगाने वाला है, वो कुछ बोरो करके लगाएगा, कुछ अपने पास से लगाएगा, इसमें एक्सपेंशन नहीं हो पाता है कई बार बिजनेस का. अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस, अनसर्टेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सी, अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता है उस लाइन में, तो उसको क्लोज डाउन करना होगा बिजनेस. डेथ के केस में, इंसेनिटी के केस में, प्रोप्राइटर ऑल्सो लेड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस बिकॉज ही इज दी ओनली सोल ट्रेडर. इन शॉर्ट, बिजनेस सिंक्स, डूबेगा भी और उभरेगा भी, स्विम विद द प्रोप्राइटर ओनली. If proprietor is active, he'll swim with the business, and if he is not active, he is inactive, or in case of any mishappening, his business will definitely sinks. Okay, so there is uncertainty. If everything is going on good, business बहुत अच्छा चलेगा. If there are some problem is happening, in case of mishappening, so the business sinks. Next is unlimited liability. The liability of sole trader is unlimited. In which sense? The business creditors can even recover their debts from the personal assets. अब जो से अभी हम यहाँ पर इस पॉइंट में बात कर रहे थे, the one who is giving some finance, financial help जो उसे कर रहा है, उसको पता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसको पता है कि अगर ये मेरे पैसे नहीं लौटा पाया, इसका बिजनेस अच्छा नहीं चला, तो इसके अपने कुछ पर्सनल एसेट्स हैं जिनसे मैं रिकवर कर सकता हूँ, राइट. सो इन दिस केस प्रोप्राइटर में कम्प्लीटली रूंड, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एकदम तबाह, क्योंकि उसको पता है कि अगर इन केस आई विल नॉट बी एबल टू रिकवर देयर डेब्ट्स, तो वो लोग मेरे पर्सनल एसेट्स उठा के ले जाएंगे और उससे ही रिकवर कर लेंगे. सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है. नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी. बहुत सारे मैनेजरल फंक्शंस होते हैं, हमने जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, दो कोई भी सोल ट्रेडर रखता होगा नीचे किसी को, बट दे आर एसेंशियल फॉर एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. जब आप पढ़ोगे आगे बेटा 12th में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके अलावा सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है. अब आप स्कूल की बात करो, स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल सर ओनली कैन नॉट रन द होल स्कूल. वाइस प्रिंसिपल मैम इज़ देयर इज़ अ हिरार्की. Coordinators are there, HODs are there, teachers are there, right? Because alone a person cannot manage each and everything. So what is here? Managerial ability, which is most important. It is limited because the sole trader is looking after each and everything.
सो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आर नॉट अवेलेबल. स्पेशलाइजेशन कब आता है? हायरार्की इज देयर. प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, HODs ऑल आर अवेयर व्हाट दे आर सपोज टू डू. यहाँ पर ओनली द सोल ट्रेडर इज़ परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी फंक्शन. किसी को काम बताना है वो, पैसा अरेंज करना है वो, रॉ मटेरियल अरेंज करना है वो, राइट, और मशीन्स लानी है तो वो देख रहा है. ही इज़ लुकिंग आफ्टर दैट. So the individual may not be able to perform the managerial function because of limitation of time, energy, skills and imagination. So the sole trader cannot perform all managerial function क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती है, उसे बाकी चीज़ों में एनर्जी लगानी होती है. ही डू नॉट हैव दैट स्किल्स एंड इमेजिनेशन बिकॉज ही हैज़ नंबर ऑफ वर्क टू लुक आफ्टर, टू सी, टू मैनेज, राइट. स्पेशलाइजेशन कब आता है? स्पेशलाइजेशन तब आता है, लाइक सपोज़ मैं किसी वेल्डर को पेंटिंग का काम करने के लिए दे दूँ तो वो काम कैसे करेगा? स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर वर्क, राइट. एंड इफ़ इन केस मैं ऐसा दे दूँ कि आप किसी एक ही मॉनिटर, क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाए और उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, इट हैपन्स, बट ऐसा भी होता है कि 2 मॉनिटर्स होते हैं. इन केस ऑफ एब्सेंस फिर भी कोई होता है लुक आफ्टर करने के लिए, राइट. सो एक मैनेजमेंट होना चाहिए. स्पेशलाइजेशन तभी आता है चीज़ों में, चीज़ें अच्छे से तभी हो पाती हैं. अनसाउंड बिजनेस डिसीजन. सी द चांसेस ऑफ टेकिंग अनसाउंड और रॉन्ग डिसीजंस आर क्वाइट हाई क्योंकि द वन हु इज़ द सोल ट्रेडर वो अपने बिहाफ पर डिसीजंस लेता है. डिसीजन रॉन्ग भी हो सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सोल ट्रेडर टेक ऑल वन डिसीजन ऑफ बिजनेस हिमसेल्फ. खुद से डिसीजन लेता है. ही इज़ नॉट असिस्टेड, कोई और उसको गाइड नहीं करता है डिसीजन लेते हुए. तो डिसीजन रॉन्ग भी हो सकते हैं. कहते हैं ना, 2 की सलाह 2 की होती है. दिस विल अफेक्ट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. अगर डिसीजन गलत लिया तो प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो जाएगी बिजनेस की. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द मेरिट एंड डीमेरिट्स. द मेरिट्स आर क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट. एक सोल ट्रेडर अपनी डिसीजन खुद ले सकता है. सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती हैं. मोटिवेट होता है काम करने के लिए क्योंकि उसको दिखता है कि आई एम अर्निंग प्रॉफिट. सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, उसे पता है मुझे अपना काम कैसे पूरा कराना है. द सोल ट्रेडर कैन एनी टाइम फॉर्म द फर्म एंड कैन एनी टाइम क्लोज डाउन द फर्म. फ्लेक्सिबल होता है. अगर इफ़ ही इज़ फाइंडिंग द सिचुएशन इज़ डिमांडिंग समथिंग एल्स तो वो स्विच कर सकता है किसी और बिजनेस पे. बिकॉज ही इज़ द ओनली सोल ट्रेडर तो ही इज़ वेरी मच अवेयर अबाउट हिज कस्टमर्स, तो उनके पर्सनल टच में रहता है. डिमेरिट्स वी जस्ट हैव डिस्कस. फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं जिससे एक्सपेंशन नहीं हो पाता है बिजनेस का. अनसर्टेनिटी रहती है. बिजनेस चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर. अगर सोल ट्रेडर के पास ने किसी से कुछ सामान बोरो किया है तो उनको पता है कि उसकी कितनी वर्थ है क्रेडिट लेने की, वो उसके एसेट से उनको कवर कर सकते हैं. मैनेजर्स की कमी होती है. स्पेशलाइजेशन नहीं आता काम में क्योंकि वही सारे काम संभालता है. जब काम डिवाइड हो जाता है तो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है. सब लोग अपना अपना काम करते हैं, स्पेशलाइजेशन आता है. अनसाउंड बिजनेस डिसीजन. समटाइम इट हैपन कि द सोल ट्रेडर कैन might have take this wrong decision. Due to this, the whole business will suffer. The prosperity of the business will gone. Okay. Now comes the suitability of sole proprietorship. How much sole proprietor is suitable. He is suitable for the small business requiring modest capital, minimum capital and limited managerial talent. ऐसा नहीं है बहुत पढ़ा लिखा होगा कोई वही सिर्फ काम कर सकता है. आप देखते हो कि शॉप्स खोल रखी हैं, स्टोर्स खोल रखे हैं. दे आर नॉट वेल एजुकेटेड बट दे हैव द कैपिटल. उनके पास पैसा है और वो बिजनेस में लगा रहे हैं. एज इन केस ऑफ रिटेल स्टोर, ग्रॉसरी शॉप खोल लिया है, कन्फेक्शनरी खोल लिया है, लेट्स सपोज स्टेशनरी खोल लिया है, राइट. पैसा लगाया अपना और रिटेल शॉप्स खोल लिए हैं, ओपन कर लिए हैं. नेक्स्ट इज़ कुछ ऐसा बिजनेस होता है जिसमें बहुत पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है कस्टमर्स को, तो उसके लिए भी सूटेबल होता है. जैसे टेलर का काम, प्रोफेशनल सर्विसेज देना, जैसे मेडिकल स्टोर्स या लीगल आप बैठ जाते हैं, ओके, लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसी को, ओके.
सो इन सब चीज़ों के लिए भी शॉर्ट टर्म ऐसा बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट सुटेबल फॉर सोल प्रॉपर। कोई भी एक जिसके पास कुछ क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ और कुछ कैपिटल है, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस in those line of business where the demand of product is often influenced by the seasonal trend and fashions। ऐसे बिजनेसेस के लिए जहाँ पर डिमांड जो होती है प्रोडक्ट्स की वो अक्सर चेंज होती रहती है, सीज़न के बदलने पर, ट्रेंड्स के बदलने पर, फैशन के चेंज होने पर, राइट। इन द प्रोडक्शन ऑफ अनस्टैंडर्डाइज्ड गुड्स लाइक एम्ब्रॉयडरी या आर्टिस्टिक थिंग, आप इसमें एक बार भी नहीं सोचोगे, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी की नॉलेज है आप अपना काम शुरू कर सकते हो, आपको स्केचिंग आर्ट का शौक़ है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो। आपको पता है कि अब मुझे खाने का काम करना है, फूड कोर्ट खोलना है, अभी नहीं चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक काम करते हैं, कुछ फैशन क्लोथिंग गारमेंट्स का काम कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है उतना लगाने के लिए। वेयर द इंडिविजुअल हैज़ सर्टेन स्किल्स विद द हेल्प ऑफ विच ही वॉन्ट टू अर्न हिज लिवलीहुड इंडिपेंडेंटली। आपको लगता है यू हैव इनफ मनी, यू कैन ओपन एनी रिटेल स्टोर्स, आप का इससे काम हो सकता है, आपकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है थ्रू दिस, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, उससे प्रॉफिट अर्न करोगे। फॉर केटरिंग टू डिमांड्स ऑफ द लोकल मार्केट लाइक पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, लॉन्ड्रीज, ग्रॉसरी स्टोर, कन्फेक्शनरीज, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? ऑल यू नीड इज़ मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड टैलेंट, मैनेजरल टैलेंट। MBA की पढ़ाई करके आपको ये बिज़नेस नहीं करना है, कर सकते हो आप तब भी, जस्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। So today we are done with the sole proprietorship. Tomorrow we will discuss the partnership. Once again I am recalling the chart. Form of enterprise में we are done with the sole proprietorship, its features, its advantages, its limitation and its suitability. यहाँ पर ओनर होता है only sole trader, individual, one individual, right? Now we are going to discuss the partnership firm from the another in the another lecture, right? So have a good learning. That's all for today. Thank you.